داد معافی کی بنیاد دراصل ایک سکھ کے نام پر رکھی گئی۔ 1947 میں جب بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو سکھ یہاں سے چلے گئے اور یہاں مسلمان آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں اکثریت آرائی برادری کی ہے جو کہ فیروز پوری آرائی کہلاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہاں رحمانی برادری آباد ہے، جبکہ سید، جویا، سیال وغیرہ برادریاں بھی یہاں آباد ہیں۔ اس گاؤں کی آبادی 10,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ گاؤں صاف ستھرا اور ترقی یافتہ ہے۔ یہاں صحت اور تعلیم کی سہولتیں میسر ہیں۔ چک میرداد معافی کی اہم فصلوں میں آلو، مونجی، مکئی، گندم وغیرہ شامل ہیں۔ ماضی میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے چودھری حاجی عبداللہ نمبردار سابق چیئرمین، حاجی فقیر نسیم ناظم اور چودھری محمد اقبال ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کے نام بہت نمایاں ہیں۔ موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ماسٹر عطا اللہ صاحب، چودھری محمد ایوب صاحب، ماسٹر محمد افضل صاحب ترقیاتی اور فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول میرداد معافی کی یہ خوبصورت بلڈنگ ہے جہاں پر کم از کم 900 بچہ زیر تعلیم ہے، اور یہ خوبصورت جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے، اور واقعی یہ ایک شاندار بلڈنگ ہے جہاں پر بچے پرسکون ہو کر اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ ہائی اسکول کی عمارت ہے جہاں اپنی مدد آپ کے تحت 8 کمروں پر مشتمل عظیم الشان عمارت جو کہ ڈبل سٹوری ہے بنائی گئی۔ اس کے بنانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ہیڈ ماسٹر محمد منشا صاحب کا ہے۔ دوسرے نمبر پر چودھری محمد مشتاق فریدی صاحب چیئرمین UC 44 کے بڑے بھائی ماسٹر محمد اقبال صاحب ہیں، جبکہ ماسٹر محمد افضل صاحب کا اس حوالے سے کردار بہت نمایاں ہے، جنہوں نے 8 کمروں پر مشتمل اس عظیم الشان اور خوبصورت عمارت کی تعمیر کے لیے مخیر حضرات اور اپنے حلقہ احباب سے 1 کروڑ روپے کا فنڈ وصول کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس شاندار عمارت پر 1 کروڑ روپے کی لاگت آئی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں چودھری محمد مشتاق صاحب چیئرمین جو ہیں UC کونسل کے، ان کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں ان کے پاس اور ان کے خیالات، انہوں نے جو ترقیاتی کام کروائے ہیں اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ضلع ساہیوال کے ایک اہم گاؤں میرداد معافی میں۔ ہم نے اس گاؤں کا وزٹ کیا اور یہاں پر بے شمار ترقیاتی کام دیکھے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے ان ترقیاتی کاموں کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہوا کہ دیکھا جائے کہ یہ کون سی شخصیت ہے جس نے یہ سارے کام کروائے، تو ہمیں جگہ جگہ پر ایک ہی نام نمایاں نظر آیا، اور وہ نام تھا چودھری محمد مشتاق صاحب کا۔ اس وقت ہم موجود ہیں چودھری محمد مشتاق صاحب کے ڈیرے پر، اس وقت وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، ہم نے آپ کے گاؤں کا وزٹ کیا اور یہاں کے بے شمار ترقیاتی کام دیکھے، جگہ جگہ پہ آپ کا نام دیکھا، تو پھر ہم نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ کیسے آئے؟ سیاست 'ਚ ਕੋਈ ذاتی ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਆਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ, ਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। तो आवाम का शुक्रिया जिन्होंने साढ़े ते इतमाद किया। नाजरीन, हमने देखा कि जगह जगह पे तरक्याती काम हुए हैं, तो हम चौधरी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आपने इलाके में बेशुमार तरक्याती काम करवाए, तो ये जज्बा कैसे पैदा हुआ और ये सब काम कैसे मुमकिन हुआ? मुमकिन होने की वजह तो यही सी भी नून लीग की हुकूमत सी, मुस्लिम लीग नून की, तो साढ़े जिहड़े डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सी उन्हां दा तल्लक कोई मुस्लिम लीग नून ना सी, तो सानू उन्होंने आम चेयरमैनां नालों ज़्यादा फंड दिते ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਮ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। चौधरी साहब, हमने देखा कि आपने यहाँ तरक्याती कामों का एक जाल बिछा दिया, ये जज्बा आपके दिल में पैदा कैसे हुआ था? जिस टाइम ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ, ਸੋਲੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। आइंदा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं? वो कौन से मंसूबे हैं जिन पर आपकी ख्वाहिश है, दिल करता है कि इन पर काम किया जाए? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਮਸਲੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਕ ਦਾ ਮੁਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਦੇ ਚੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ बहुत आगे चले जाएगा। जो हमारे नाजरीन हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने यहाँ तरक्याती काम किए हैं, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसी तरह आपदे दूसरे भाई ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਏ, ਸੀਵਰੇਜ 16 ਬਣਾਏ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ। ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਟੁਕੜੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੀ, ਸਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1300 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹਮਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 16 ਰਹਿੰਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ पाक मेहरबानी करे जी। नाजरीन, इस अज़म के साथ चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपने तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखेंगे। चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब और अपने मेज़बान इकबाल सहर को दीजिए इजाज़त। नाजरीन, हमने यहाँ देखा कि एक बहुत नाम नुमाया था, वो था चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब का, और जिन्होंने यहाँ तरक्याती काम भी करवाए। इस हवाले से हम यहाँ के जो लोग रहते हैं मकीन, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात। ये मोहम्मद इसाक साहब हैं यहाँ पर, और ये फ़रूट का काम करते हैं। ये आप इंशाअल्लाह ताला वो अच्छे काम करेंगे और बहुत अच्छे इंसान हैं, वो किसी के साथ किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखते और अच्छे इंसान हैं और इखलाक अच्छा उनका बहुत ही अच्छा।
नहीं माशाल्लाह चौधरी मुश्ताक साहब ने बहुत अच्छे काम किए जी इधर। दूसरा है कि एक चीज़ की कमी रह गई इधर, बाकी सारे सोलंग भी लगा दिए, सब ये कब्रस्तान की दीवारें भी लगवा दी, जो जनाजगाह है उसमें भी अच्छा काम किया है। सिर्फ एक रह गया कि ना अपने गैस नहीं आ रहा, इनके बारे असी चौधरी ने 2-3 दफ़ा कह चुके हैं जी। अल्लाह करे जी जे साडी कोई रिक्वेस्ट सुनी जाएगी, उम्मीद है क्योंकि अगे काम किहड़े कहंदे सी साडा हो जांदा सी, उम्मीद ये भी हो जाएगा साडा जी। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਹਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाई मोहम्मद इकबाल। माशाल्लाह चौधरी मुश्ताक चेयरमैन ने बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे गांव के लिए। हमारे गांव का एक ही मसला है अब गैस का। हम गैस के बिना बहुत तंग हैं, इधर लोग बालन नहीं मिलता, अगों सर्दियाँ होंदियां पईयां ने, बड़े तंग है। असीं मुश्ताक चौधरी का बड़ा शुक्र करने आ साडे पिंड च गैस लाया वे। असीं गैस तो बगैर बड़े तंग हैगे हैं जी। आवाम का एक ही मुतालबा है, चौधरी साहब यहाँ पर ले आएँ गैस तो मसले सारे हल हो जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बिस्मिल्लाह बेकर्स पे और इनके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं अदनान जमील साहब। चौधरी मुश्ताक अहमद साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ही तरक्याती काम करवाए हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह आइंदा भी वो बहुत ही अच्छे काम करेंगे और हमारा चक मिर्दाद माफ़ी बहुत आगे जाएगा तरक्की में, और यहाँ पर इंशाल्लाह गैस भी आएगी और भी तरक्याती काम बहुत ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं मिर्दाद माफ़ी की एक अहम शख्सियत अब्दुर्रहमान भाई। यहाँ के तरक्याती काम भी देखे और दिल वाकई खुश हुआ और साफ़ सुथरा माहौल भी। और एक चीज़ जो हमारे सामने आई वो बार बार एक नाम आ रहा था चौधरी मुश्ताक साहब का, और फिर हमने उनसे वक्त लिया, उनके पास पहुँचे और उनका इंटरव्यू भी हमने किया। आप उनके तरक्याती कामों को किन नज़रों से देखते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमारे ना उसने बहुत काम किए हैं, वो बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें उसे दिल से लाइक करते हैं। तो आगे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हाँ जी। मौजूद हैं जवेद अख्तर भाई। हम इनसे पूछते हैं कि इनके गांव में जो तरक्याती काम हुए और चौधरी मुश्ताक साहब ने करवाए, इन कामों को ये किन नज़रों से देखते हैं? माशाल्लाह जी चौधरी मुश्ताक चेयरमैन साहब ने जो भी काम किए ना बहुत अच्छे किए। सिवरेज का जो था हमारा जो मसाइल है ना सबसे ज़्यादा वो हमारे गांव का सिवरेज का है। हमारे गांव के नज़दीक से एक नाला गुजर रहा है, हमारा सिवरेज का निज़ाम गांव का उधर चला जाए और हमें गैस जड़ी है मुआवजा की जाए। सबसे ज़रूरी ये है, चेयरमैन को रिक्वेस्ट करते हैं बकाया सोलंगों का काम जो भी काम है वो चेयरमैन ने बहुत अच्छे किए है। तो दूसरे नंबर ते साडे पिंड च गैस आ जाए, सब तो सख्त जरूरत सानू गैस दी है। बड़ी प्रॉब्लम है गैस दी प्रॉब्लम है, होर सानू कोई प्रॉब्लम नहीं गैस तो बगैर। बकाया सोलंग जेडे आ सीवरेज निज़ाम चल रहा वा, नहीं बहुत अच्छा माशाअल्लाह काम करा, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। चेयरमैन मुश्ताक बहुत अच्छे आदमी है ते अगे भी असीं उतो उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह अच्छे काम करवाएंगे। नहीं माशाल्लाह सारे काम कर रहे हैं। आपको गैस की ज़रूरत है, इतने गैस नहीं है, अगर गैस मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी। नाजरीन बाबा जी यही कह रहे हैं कि गैस की अशद ज़रूरत है जी। चौधरी मुश्ताक ने जो नवा होया ना उदों उन्हें सीवरेज का भी काम मुकम्मल करवाया। तकरीबन साड़ी गली के विच बहुत पानी जिहड़ा सी ना बाहर ही निकलता सी, कोई पानी निकलता निकासी नहीं है सी। उस तो बाद उन्हें उत्ते सोलंग भी दोबारा लवाया, सीवरेज नूं गंदे एक बाहर लिजा के सरकारी खाले च पाया। जिहड़ा खूह सी वो बंद सीगा, गटरां वाला खूह बंद हो गया सी कई सालों तो, जिसकी वजह तो मकानां दीयां दीवारां जिहड़ियां सी वो पाट गईयां, ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਟ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲੰਗ ਲਵਾਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਰਦਾਦ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੈਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਉੱਠੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਗੈਸ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਗੈਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ और बालन भी नहीं लभदा। हूँ तो मौसम की वजह तो बालन नहीं लभदा, चुल्हा साडा आपदा कई दिनों का बंद पिया। चौधरी मुश्ताक साहब अच्छे बंदे है, काम भी अच्छे करते हैं। बहरहाल साड़ी असल ज़रूरत जिहड़ी है वो देखिया होना तुसी, सड़क जिहड़ी है सारी टुटी फुटी पई है,
जी सही है। सड़क जड़ा अहम ज़रूरी है साढ़े वास्ते। बस यही है, गैस का मसला है, गैस आ जाए और सड़क ठीक हो जाए, ठीक है, बकाया सब ठीक है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मीरदाद माफ़ी की एक अहम शख्सियत जनाब मास्टर अली अहमद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये मीरदाद माफ़ी गांव बहुत पुराना और बहुत बड़ा गांव है। इसमें जो मौजूदा हमारे चौधरी मोहम्मद मुश्ताक फरीदी साहब चेयरमैन हैं, इनका अपना जो चेयरमैनशिप का दौरानिया है ये बहुत शानदार रहा है। इन्होंने हमारे गांव में तरक्याती जो काम किए हैं मिसाली हैं। और अभी जब इनकी चेयरमैनशिप का दौरानिया था तब हमें अपने गांव में कोई ऐसी गली नहीं नज़र आ रही थी, ढूंढने से नहीं मिलती थी कि जहां कोई सोलिंग या कोई सीवरेज का काम रह गया हो। स्कूल के हवाले से बात करें तो हमारे स्कूल में जितने भी प्रमोशन तरक्याती काम हुए हैं तो इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। हत्ता कि हमारे स्कूल का ब्लॉक जो एक अपनी मदद आपके तहत बनाया गया उसमें इनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। और हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो वहाँ भी इनका तावन भरपूर हमेशा रहता है। लड़कियों का हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे गांव में, वहाँ भी अगर कभी प्रिंसिपल से बात हुई है तो इनका नाम बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है कि मुश्ताक भाई जो हैं वो हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छा तावन करते हैं। जब कभी किसी ट्रैक्टर की, ट्राली की, डेवलपमेंट की, कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे आगे होते हैं। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम है जो इन्होंने गांव में अंजाम दिए हैं। जी शुक्रिया। और चौधरी मुश्ताक अहमद फरीदी साहब जिनका जो आपने ज़िक्र किया है, ये हमारे इलाके की एक मरूफ सियासी शख्सियत हैं। तो इन्होंने अपनी जो चेयरमैनशिप का दौरानिया है ये बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है। इसमें इन्होंने जो हमारे गांव की, जहां पर अभी तक सोलंग नहीं लगा था और वो बार बार इग्नोर हो रही थी जो सड़कें थी, वो इन्होंने पुख्ता बनाई। उसके अलावा हमारे गांव का एक बहुत ही दरीना और बहुत पेचीदा मसला था, वो था हमारे गांव का जो आधे गांव का जो सीवरेज है ना, वो जा रहा था कब्रिस्तान में और कब्रिस्तान की वो बेहरमती हो रही थी। तो चौधरी मुश्ताक अहमद फरीदी साहब ने अपनी कोशिशों से और इस तरह अपनी चेयरमैनशिप के दौरान इन्होंने उससे सीवरेज का जो पानी है इसको कब्रिस्तान से जाने का जो रास्ता है उसको तब्दील किया और सीवरेज का इंतज़ाम बेहतर किया है और पुख्ता खाल में जाकर गिरा दिया है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरदाद माफ़ी चक की एक अहम शख्सियत, नामवर शख्सियत और बुजुर्ग शख्सियत बाबा अब्दुल मजीद साहब के पास। सानू ये गैस जड़ा ना, गैस की ज़रूरत है बहुत शदीद बालन वाली और अल्लाह की तो ठीक ठाक है सारा काम। तो गाइस, कैसा लगा आपको चक मीरदाद माफ़ी? हमें तो बहुत पसंद आया। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखना और अपनी दुआओं में अपने इस भाई को याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।